Well, Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing vertebrate sensory reception in previous lectures, and the last sense which we are going to discuss today is the sense of vision in vertebrates. इससे पहले हमने स्किन सेंसर्स या स्किन के जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनको डिस्कस किया बेटे, सोनार सिस्टम, स्मेल, टेस्ट, टच, ये सारे रिसेप्टर्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. The last sense which we are going to elaborate today with reference to vertebrates is the sense of vision. And you know, vision is carried out by prominent eyes in the vertebrates. और vertebrate की जो eyes होती हैं ये camera eyes होती हैं. Camera eyes mean that is they can form well-defined images as well, visual images as well. And the structure of eye in vertebrates can be described by taking an example of human eye. हम human eye की example को as vertebrate eye discuss कर लेंगे और फिर बाकी जो vertebrate के groups हैं उनके differences को बेटा साथ साथ elaborate कर दिया जाएगा. ये eye का structure आपने previous classes में भी discuss किया हुआ है. आज दोबारा से जो है हम eye जो है इसके structure को elaborate कर रहे हैं. Just look at this diagram. This diagram explains the structure of mammalian eye and human eye has been used as a model. सबसे पहले कवरिंग की बात कर लेते हैं. आउटर कवरिंग, मेम्ब्रेनस कवरिंग जो है इसमें कहलाती है कंजक्टिवा. Further, there are three layers in the eyeball which are covering our eyeball. Outermost layer is sclerotic layer, which is protective in nature. The second layer is choroid. Choroid is dark layer and it absorbs excessive light. The light sensitive layer of the eye is called retina. The innermost layer, the light sensitive layer, is known as retina, and retina itself is further composed of at least 9 layers of the cells. उन सेल्स में से जो रेटिना के अंदर मौजूद होते हैं बहुत से सेल्स न्यूरॉन्स हैं और कुछ मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं जिनको हम रॉड्स एंड कोन सेल्स कहते हैं. फर्दर इनकी डिटेल हम डिस्कस कर लेंगे. फोविया सेंट्रलिस, जिस पे जब इमेज डेवलप होता है या इमेज जब इस एरिया में बनता है तो बहुत क्लियर इमेज डेवलप होता है at the point of fovea centralis. On the other hand, if we're looking at the eye, there are two main chambers of the eye overall. बेटा एक posterior chamber होगा, ये सारा posterior chamber है, और एक interior chamber होगा. In the white portion जो कि extended sclerotic layer के साथ join कर रहा होता है, it's known as cornea. और जो colored पोर्शन नजर आता है इसका जिसकी वजह से हमारी आईज का कलर डिफरेंट होता है, दैट इज iris. Iris is responsible for the determination of color of the eyes, and the opening through which light enters in the eyes is known as pupil, while there are certain muscles as well in the form of suspensory and ligament which are controlling the shape of lens, and ciliary body which is connected with these ligaments as well. Anterior chamber is also known as aqueous humor, and posterior chamber is also known as vitreous chamber or vitreous humor in the eyes. तो ये जो पॉइंट है जहां से आर्टरीज और वेन लीव कर रही होती हैं आई को, आईबॉल को, या एंटर हो रही होती है इसमें, इट्स नोन एज ब्लाइंड स्पॉट. यू नो वेरी वेल, ब्लाइंड स्पॉट इज द एरिया कि जब यहाँ पे लाइट फोकस होगी, इमेज बनेगा,
तो वो नजर नहीं आएगा. That's why it is termed as blind spot of the eyes. Or optic nerve, the nerve which is carrying information for the image formation. Image formation की information जो brain तक पहुंचाती है, that is optic nerve. Optic nerve plus blood supply of the eyeball, they are forming an extension of it. ये extension हमारे पास optic nerve और blood supply के हवाले से. ये सारे पॉइंट्स को बेटा इससे प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन भी किया गया है. और ये जो मसल्स हैं, रेक्टस मसल्स, अपर एंड लोअर साइड पे सुपीरियर और इंफीरियर मसल्स कहलाते हैं, एंड दे आर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द आई बॉल ओवर हियर. ये हमारी जो हमने लेयर्स डिस्कस किए हैं, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, कोराइड टिश्यू, एज वेल एज colored iris, which is with light spinning pigments, and it has radial and circular smooth muscles for regulating the amount of light entering the pupil. A clear fluid, aqueous humor on the anterior side and posterior chamber. There are present two types of chambers between the lens and the cornea. The lens is behind the iris and is a jelly-like vitreous body that fills the vitreous chamber behind the lens. The moist mucous membrane that covers the eyeball is conjunctiva. ये आपने सारे पॉइंट्स ये पार्ट्स अभी डिस्कस किए बेटा. Fishes, they are having similar eyes, but a prominent difference from the other vertebrate eyes is that fish eyes are lidless. They don't have lids or covers, and their lens is rounded and close to the cornea. तो लाइट को फोकस करने के लिए लेंस को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करना पड़ता है. लेंस की शेप चेंज करने के बजाय लेंस की मूवमेंट होती है. जबकि हायर वर्टिब्रेट्स की जो आईज हैं, लाइक ह्यूमन, द शेप ऑफ देयर लेंस चेंजेस. उसकी कन्वेक्सिटी चेंज होगी. वर्टिब्रेट्स कैन एडजस्ट देयर विजन फॉर लाइट कमिंग फ्रॉम आइदर क्लोज अप और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. दिस प्रोसेस ऑफ फोकसिंग लाइट रेज properly, precisely on the retina is called accommodation. And vertebrates, they are relying on the coordinated stretching as well as relaxation of eye muscle fibers, ciliary body and suspensory ligaments, जो लेंस की शेप को कंट्रोल होते हैं और लेंस की अकोमोडेशन को जो है रेगुलेट करते हैं. But focusing required in the fishes moving of lens forward or backward as well. The eyes of fishes are similar in most aspects of structure and function to those in other vertebrates, but they are lidless and lens is rounded and close to the cornea. ये कुछ differences हैं इनके. Amphibians की अगर हम बात करें तो उनमें भी बड़ी prominent vision के तौर पे prominent एक aspect के तौर पे, sense के तौर पे vision develop हुई है. Bulging eyes, lateral eyes prominently frogs में, toads में observe की जा सकती है. A number of adaptations allow the eyes of amphibians to function in terrestrial environment, but when they are in the aquatic environment, तो वहां पर भी इनको कवर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे जो उनमें मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल आईज ऑफ सम एम्फीबियंस, ए न्यूरॉन्स में आ जाते हैं बेटा. फ्रॉग एंड टोड और सैलामेंडर्स की बात हो रही है जो कि टेल्ड एम्फीबियंस हैं, जबकि ए न्यूरॉन्स टेल लेस एम्फीबियंस है, विदाउट टेल. They're close together on the front of the head and provide the binocular vision and well-developed depth perception necessary for capturing prey. Birds में binocular vision develop हुई है, जो दोनों साइड से एक complete view जो है वो almost दे रही होती है. Other amphibians with smaller and more lateral eyes, for example salamanders, they lack binocular vision. उनकी eyes की position जो है उसकी वजह से. However, their more laterally placed eyes permit these animals to see well off their sides. आप देख सकते हैं ये जो eyes आपको नजर आ रही हैं, बॉडी के लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट है, लेफ्ट राइट. तो इनको अपनी साइड्स पर देखने में आसानी होती है और क्लियरली नजर आता है. और लिड के अलावा एक आप कह लें कि कवर के अलावा, आई कवर के अलावा इनमें एक मेम्ब्रेन होती है, nictitating membrane. Nictitating membrane is the
inner eyelid and is movable as well as clean and protects eyes. तो इनके अंदर एक अलग से जो है वो ट्रांसपेरेंट कवरिंग निकलेटिंग मेम्ब्रेन की फॉर्म में मौजूद होती है जो कि आईज को प्रोटेक्ट भी करेगी और क्लेंजिंग का काम भी करेगी ड्यूरिंग वियर. As far as reptiles are concerned, vision is the dominant sense in most reptiles. और इनकी आईज भी एम्फीबियन से रिजेंबल करती हैं राइट साइड पे. एक रेप्टिलियन आई के अलावा उसकी मीडियन आई या थर्ड आई की बात की गई है. अपर एंड लोअर आईलिड्स, a nictitating membrane and a blood sinus protect and cleanse the surface of eyes. कि आईलिड्स भी हैं इनके अंदर, अलग से जो है वो nictitating membrane भी मौजूद है और एक ब्लड साइनस भी जो कि आई को प्रोटेक्ट भी करती है और उनकी सरफेस को क्लिनजिंग में भी हेल्प कर रही होती है. In snakes and some lizards, the upper and lower eyelids diffuse in the embryo to form a protective window of clear skin called the spectacle. कि upper और lower eyelids उनकी जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे फ्यूजन हो जाती है और एक प्रोटेक्टिव विंडो बन जाती है जो बिल्कुल क्लियर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन वो आई को जो है वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. Some reptiles they possess a median or parietal eye, third eye, जो reduced है. That develops from outgrowth of the roof of the optic tectum. और मीडियन आई को हायर एनिमल्स में कहा जाता है कि ये मॉडिफाई हो चुकी है and has been modified in the form of pineal gland जो कि उसका rudimentary structure मौजूद है. In the Tatora, the median eye is complete with a lens, nerve and retina. लेकिन ये इमेज फॉर्मिंग आई नहीं होती. ये जो थर्ड आई है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि दो आईज के अलावा एक थर्ड आई भी होती है जिसमें कॉर्निया भी है, लेंस भी है, लीमन भी है, रेटिना भी है, सेंसरी न्यूरॉन भी है. ये सिर्फ जाहिर है इसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग है तो इस एरिया में जो आई मौजूद है दैट इज नॉट इमेज फॉर्मिंग. ये सिर्फ डार्क और लाइट के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए. इन अदर रेप्टाइल्स द मीडियन आई इज लेस डेवलप्ड. Skin covers median eyes, which probably cannot form images. They can, however, differentiate light and dark periods and are used in orientation to the sun. तो इसका मतलब है इसकी वजह से लाइट और डार्क पीरियड में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और सन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की ओरिएंटेशन उसको डिटरमाइन करेंगे. As far as birds are concerned, it's even much more important sense for the birds. बर्ड्स की आई का स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे वर्टिब्रेट्स लाइक हाई वर्टिब्रेट्स से रिजेंबल करता है मैमलियन आईज के साथ. बर्ड्स हैव अ यूनिक डबल फोकसिंग मैकेनिज्म. या आप अगर राइट साइड पे देख सकें, पेरिफेरल विजन की बात हम करते हैं तो ह्यूमन विजन की बात की गई लोअर साइड पे. लेट मी फोकस इट. यस, ह्यूमन विजन की बात की गई है, फिर डॉग विजन की, हॉर्स के विजन की और बर्ड विजन की. और ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है इसमें वाइट कलर का एरिया जो लोअर साइड पे नजर आ रहा होगा, ये पॉइंट्स, ये वो एरिया बेटा जो विजिबल नहीं होता, देखते हुए जो विजिबल नहीं होता, इट इज नॉट विजिबल. और जो डार्क ब्लू कलर में नजर आ रहा है दैट इज विजिबल टू वन आई ओनली. लेफ्ट साइड पे लेफ्ट आई का एरिया और राइट साइड पे राइट आई का. एंड लाइट ब्लू जो इससे भी लाइट कलर में हाईलाइटेड है अपर साइड, दैट इज विजिबल टू बोथ आईज. तो जो नॉन विजिबल एरिया है जैसे ये बैक साइड पे जो एरिया होगा, ये सारा एरिया बैक साइड पे ये हमें नजर नहीं आ रहा होता और फ्रंट साइड से जो है वो जाहिर है ये विजन है, ये दोनों साइड के लिए और इतना एरिया लेफ्ट और राइट के लिए, डॉग के लिए है, फिर हॉर्स के लिए है. जबकि बर्ड्स की विजन की अगर हम बात करें तो इनमें बहुत थोड़ा एरिया रह जाता है जो विजिबल नहीं होता. इनकी आईज जो है वो बाइनोकुलर विजन की फॉर्म में इनको साइड्स पर भी एक प्रॉपर व्यू जो है वो मिल रहा होता है. सबसे जो ज्यादा ब्रॉड विजन जिनमें बन रही है वो ब्रॉड विजन बेटा बन रही है बर्ड्स के अंदर.
The birds, they are having broader vision as compared to other vertebrates. कुछ pad like structures होते हैं instead of iris that control the curvature of the lens, and ciliary muscles change the curvature of the cornea as well. Double nearly instantaneous focusing allows an osprey कहते हैं birds of prey जो आमतौर पे predatory birds हैं, to focus on a fish throughout a brief but breathtaking fast descent. उतरते हुए, डिसेंड करते हुए किसी फिश को देखते हैं, ऑस्प्रे जब किसी फिश पे फीड कर रहे होते हैं बर्ड्स, तो वो बहुत तेजी से प्रॉपरली उसका इमेज जो है वो डेवलप हो जाता है उनके अंदर. और बर्ड्स के अंदर कलर विजन भी डेवलप्ड है. अगर आप ये अपर डायग्राम को देख सके तो बर्ड की विजन और ह्यूमन की विजन को डिफरेंशिएट किया गया कि एक बर्ड सेम बर्ड है ये दोनों डायग्राम में. ह्यूमन विजन में इन कलर्स में नजर आ रहा होगा और बर्ड्स की जो विजन है वो इस पैटर्न में इसको देख रही होगी. बर्ड्स के अंदर जो है वो उनके थर्मल सेंसर्स या बाकी एरियाज वो भी इसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं एज कलर्स. तो ये बर्ड की विजन में नजर आ रहा होता है, ये ह्यूमन की विजन में इसका कलर नजर आ रहा होता है. लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स हैव अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन that is drawn over the eyeball surface. और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि वो उसको प्रोटेक्ट भी करेगी और उसकी क्लींजिंग में भी हेल्प कर रही होगी. Then in all vertebrates, the retina is well developed and its basement layer is composed of pigmented epithelium that covers the choroid layer. As I said previously, कि retina itself further कितनी layers से develop हुआ होता है? There are 9 different layers of the cells even in the retina. And the most important layer, which are modified neurons, they are rods. That is a layer of rods and cone cells. और rods and cone cells को उनका ये नाम क्यों दिया जाता है? Just look at this. Rod cells, they are having shape resembling to a rod. इनका outer segment जो है वो rod like होता है, जबकि cone cells, their outer segment is appearing in a conical shape. That's why they are named as cone cells. Outer segment is having connective cilium and inner segment उसमें न्यूक्लियस पड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि जो लोअर सेगमेंट है वो सिनेप्टिक रीजन कहलाता है. सिनेप्स बनाएगा जो दूसरे सेल्स के साथ, कुछ बायपोलर सेल्स के साथ जो यहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, लाइट की इंफॉर्मेशन. रॉड्स एंड कोन सेल्स दे आर सेंसिटिव टू लाइट. रॉड सेल जो है ये डिम लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं और कोन सेल्स ब्राइट लाइट के अगेंस्ट. रॉड सेल्स दे हेल्प इन नाइट विजन. ये रात के वक्त जब बहुत थोड़ी ये डिम लाइट मौजूद होती है तो एनिमल्स को नक्टर्नल लाइफस्टाइल में, वो एनिमल्स जो रात के वक्त ज्यादा एक्टिव होते हैं उनमें रॉड सेल्स वेल डेवलप्ड है और दे आर हैविंग मोर रॉड सेल्स. फॉर एग्जांपल आउल, वो रात के वक्त बड़ी आसानी से देख सकते हैं. ना सिर्फ आउल बल्कि वो सारे एनिमल्स जिनका एवोल्यूशन इस तरह से हुआ है कि वो नाइट टाइम पे अपना एक्टिविटी का पीरियड ज्यादा पास करते हैं. दे आर हैविंग वेल डेवलप्ड रॉड सेल्स, उनकी नाइट विजन डेवलप्ड है. और जिन एनिमल्स में रॉड सेल मिसिंग होते हैं, दे कैन नॉट सी प्रॉपरली एट नाइट, या रात के वक्त उनको बिल्कुल भी डिम लाइट में नजर नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक चिकन, उसमें रॉड सेल्स नहीं होते तो वो रात के वक्त ठीक से नहीं देख सकते. अपनी दूसरी सेंसेस को यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट. कोन सेल्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन. वो एनिमल्स जिनमें कोन सेल्स डेवलप्ड है, they can easily sense different colors. और कोन सेल्स वाले एनिमल्स बेटा वो हैं जिनका एवोल्यूशन डे टाइम में हुआ है. एनिमल्स विच डेवलप ड्यूरिंग डे टाइम. और कोन सेल्स की अगर हम बात करें तो कोन सेल्स के अंदर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होती है, दैट इज ऑप्सिन. और रॉड सेल्स के अंदर लाइट सेंसिटिव प्रोटीन है रोडोप्सिन. ऑप्सिन और रोडोप्सिन ये दो लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं विच आर प्रेजेंट इन दिस सेल्स. और
ये विजन में हेल्प करते हैं. When a pigment such as rhodopsin in rod cells absorb light energy, that energy in this reaction releases or triggers the generator potential in the axon, and then an action potential that leaves the eyeball via the optic nerve. और उसी एक्शन पोटेंशियल से जो है वो इमेज की इंफॉर्मेशन जाती है. व्हेन द फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट बीइंग स्टिमुलेटेड, जैसा कि डार्क में होता है, विटामिन ए एंड एनर्जी फॉर एटीपी कन्वर्ट रोडोप्सिन बैक टू द लाइट सेंसिटिव फॉर्म. ये इसके प्रिकर्सर्स हैं. नेक्स्ट सेमेस्टर में जब हम फिजियोलॉजी की डिटेल पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप इसका पूरा पाथवे भी पढ़ेंगे बेटा. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोन शेप color sensitive cells in the retina of the eyes of primates, birds, reptiles and fishes. और इनमें से थ्री जो बेसिक कौन सेल्स हैं, एक रेड कलर के लिए है, एक ब्लू और एक ग्रीन. Each type of cone cell respond differently to light reflected from a colored object. And the pigments are light absorbing proteins that are particularly sensitive to either the longer wavelength red, intermediate wavelength green or shorter wavelength blue region of the visible spectrum. तो बाकी जो कलर्स नजर आ रहे होते हैं इनके मिक्स्ड एक्शन की वजह से. रेड कौन सा रेड लाइट एब्जॉर्बिंग कौन सेल्स, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट. The retinal nerves translate the relative amount of light that each type of cone absorbs into generator potential that are then transmitted as nerve impulse to the brain, where the overall pattern evokes the sensation of a specific color or hue. तो ये कलर विजन के हवाले से रेटिना का रोल बताया गया. बेटे यहाँ पे I hope so you're looking at the screen and you can observe the structure of eye, outer structure of the eye. इसमें से जो white area आपको नजर आ रहा होगा that is cornea, iris and pupil. ये जो एरिया जो है pupil जिसके थ्रू लाइट जो है वो एंटर हो रही होती है थ्रू टू द लेंस. इसमें अगर आप देख सके ये इमेज की फॉर्मेशन को एक तो डिस्कस किया गया दैट इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना दे आर इन्वर्टेड इमेजेस. और ये एरो शो कर रहा है कि उस इन्वर्टेड इमेज का मैसेज जहां जहां जो भी न्यूरॉन एक्टिवेट होंगे, जिन न्यूरॉन्स के अंदर प्रोटीन पिगमेंट्स एक्टिवेट होकर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहे होंगे, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू इसको एक्टिवेट करेंगे. ऑप्टिक नर्व के थ्रू मैसेज आगे जाएगा. Your eyes work by detecting a flat image formed on the retina. Your brain has to use this information to create the perception of the world, which is three-dimensional. कि बाजू का फ्लैट इमेज को थ्री डायमेंशनल फॉर्म में ब्रेन करके दिखाता है. और why do we have two eyes? Most real animals have two eyes. That is, there has to be a good reason why. To find out, you should try wearing an eye patch. जाहिर है कि उससे आपकी जो है वो ability या कैपेसिटी या यूं कह लें एफिशिएंसी इंक्रीज होती है फॉर द विजन. एंड नो वन इज परफेक्ट, नॉट एवरीवन हैज परफेक्ट आई साइट. कुछ इसमें आपको पता है कि ग्लासेस वगैरह भी पहनते हैं कुछ लोग. ये कलर के हवाले से, कलर विजन से रिलेटेड. और ये जो आपको डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही है इस डायग्राम में सेल्स की, दीज आर द लेयर्स ऑफ रेटिना. रेटिना के बाद ये जो डीपेस्ट लेयर आपको नजर आ रही होगी इस साइड पे, that is the layer of rods and cone cells. इसमें rods and cone cells हैं. If there is a problem of these cone cells, तो आपने पढ़ा होगा कलर ब्लाइंडनेस, कलर परसेप्शन में प्रॉब्लम होती है. तो कलर ब्लाइंडनेस का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस तो नहीं किया गया, लेकिन ये रेटिना से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है. नेक्स्ट भी डिटेल इसकी आएगी. आई सर्ट की प्रोडक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं. Light is only a small part of the energy which reaches to the earth and sun. You know, colors are nothing actually. Colors are nothing. They are due to different wavelengths of light. तो ये जो 7 कलर्स होते हैं लाइट के भी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, वो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं लाइट की जो एक्चुअली लाइट स्पेक्ट्रम में हमें नजर आ रही होती है. इनकी बात हो रही है. ये आई के हवाले से स्ट्रक्चर हम डिस्कस करके आ चुके हैं पहले कि आई का स्ट्रक्चर कैसा है. ये डिफरेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं पहले भी आई के हवाले से. Just look at this.
The part of the eye that is the part of the brain which is making this inverted image, जो इस inverted image को जो है वो show कर रहा होता है, और ये हमारे पास iris का portion, उसके अंदर ये ग्रीन कलर में आयरस की शेप चेंज होती है आपको नजर आ रही होगी, दैट इज कंट्रोलिंग द मूवमेंट, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द लेंस। और ये इमेज फॉर्मेशन के हवाले से रेटिना पे जब इमेज बनाना होता है, फोकस करना होता है, कम या ज्यादा लाइट में आयरस इस चीज को रेगुलेट करता है कि कितनी लाइट चाहिए फॉर द विजन। और ये फोकसिंग के लिए लेंस की शेप कैसे चेंज होती है, उसकी कन्वेक्सिसिटी, उसको आप देख सकते हैं। कन्वेक्सिसिटी ऑफ द लेंस इज बीइंग चेंज नियर ऑब्जेक्ट के लिए और फॉर ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यू नीड अ वीक लेंस, तो वो इलोंगेट कर जाता है, एंड फॉर अ नियर ऑब्जेक्ट यू नीड अ स्ट्रॉन्ग लेंस, तो वो थोड़ा सा शॉर्टन हो जाएगा और उसकी कन्वेक्सिसिटी बढ़ जाएगी। जस्ट लुक एट द वीएन ऑफ दिस टाइप। फिर रेटिना की बात हो रही है, ये हमारे पास फोविया है, ऑप्टिक नर्व, ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल ऑफ द इनर चैम्बर रेटिना साइड पे। और ये रेटिना की डिफरेंट लेयर्स, जिसमें दो तरह के सेल्स आप देख रहे हैं बेटा, रॉड्स एंड कोन सेल्स। कोराइड क्या करती है, कोराइड जो है वो एक्स्ट्रा लाइट डार्क लेयर है रेटिना से, जो इनर साइड पे लेयर नजर आ रही है, सेकेंड लेयर यहाँ पे, which absorb light after it has passed through the retina. It prevents light from reflecting around inside the eye. और ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसको आप फोकस कर सकते हैं। विच ऑफ द, ये बस एक क्विज टाइप है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो ये आपने पढ़ा है कि ये लेंस है जो कंट्रोल कर रहा होता है, सॉरी आइरिस है जो कंट्रोल कर रहा होता है। कन्वर्ट इमेजेस इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तो वो रेटिना की लेयर होगी। सेंड मैसेज टू द ब्रेन, ऑप्टिक नर्व, फोकस इमेजेस ऑन द रेटिना, दैट इज लेंस। एब्जॉर्ब लाइट एंड प्रिवेंट्स रिफ्लेक्शन, तो वो कोराइड लेयर है जो लाइट रिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करेगी और फोकस करेगी लाइट इमेज को। That was all about today's lecture about VN.